Assalamu alaikum, dear students of grade 8. I am Dildar Ali from the Educator Society Campus Shahjadpur. Students, as you know, we started our chapter 1 from your book of grammar. Students, as you know, your chapter name is concrete nouns and abstract nouns. Okay, students, this is our second lecture. So in my first lecture, I told you the definitions of both concrete noun and abstract noun, and also I told you the main difference. What is the difference between them, concrete noun and abstract noun? These things we discussed in my previous lecture. And students, I also gave you your diary as a homework. Mashallah, your work was very appreciable. Your work was very great. The student who sent me the short work was very well, was appreciable. Students, means your work was very best. Okay, students, mashallah, you are doing your very best. You are trying your very best, students. Mashallah, keep it up. Okay, students, now today is our second lecture, and in this lecture we are starting our exercise C. Okay, students, you may see on page number 3 of your book of grammar. On page number 3, exercise C. Okay, students, in exercise C, the exercise C telling us that fill in each blank with an abstract noun from the box. Students, there is a box on page number 3 in which several words are written like this. Okay, students, these words are same which are written in your book on page number 3. Okay, students, I wrote the words as well as their meanings in Urdu. Okay, students, for your helpline, for your guidance. Okay, students, you may see courage, himmat, praise, तारीफ करना, sorrow, गम, तकलीफ या दुख, whatever, gratitude, शुक्रगुजार होना, confidence, खुद एतमादी, anxiety, परेशानी, terror, खौफ, regret, अफसोस करना, गमज़दा होना. Okay, students, and help, मदद, and last word is advice. Students, these all are abstract nouns. Okay, students, these all are abstract nouns. So students, there are 10 words in this box. Okay, so which is on page number 3. There are 10 in the box. There are only 10 words. Okay, student. Below the box, student, there are 10 sentences and 10 blanks. Okay, students. Like your first blank is you show dash by thanking someone. Okay, students, जैसा कि आपको पता है, हमने अपना चैप्टर 1 आपकी ग्रामर की बुक में से स्टार्ट कर लिया है. स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नेम है कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. स्टूडेंट्स, कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशंस, दोनों की डेफिनेशंस मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में आपको बता दी थी, और उनके दरमियान आपस में क्या मेन फ़र्क है वो भी हम आपस में डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर में. स्टूडेंट्स, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, एक्सरसाइज ए और बी. माशाल्लाह, आपका वर्क बहुत अच्छा था, आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे. जिन स्टूडेंट ने मुझे वर्क अपने सॉल्व करके सेट किए, माशाल्लाह, उन सब के वर्क बहुत अच्छे थे. सब ने एक से बढ़कर एक वर्क किया था. सबका वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा था और एक्यूरेट वर्क था. किसी की स्टूडेंट के भी माइनर मिस्टेक तो थे, लेकिन सबका वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा था. कोई स्टूडेंट है जिसकी माइनर मिस्टेक थे, वरना सब स्टूडेंट का वर्क जो था बहुत ज़्यादा अच्छा था, अप्रिशिएटेबल था. माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने घर पे होने के बावजूद भी. ओके स्टूडेंट, आज हमारा सेकंड लेक्चर है. आज हम इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज सी स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट. और स्टूडेंट, एक्सरसाइज सी हमें कह रही है कि आप ब्लैंक्स को फिलअप करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन चूज करके. स्टूडेंट, एक्सरसाइज सी के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स स्टूडेंट लिखे हुए हैं. वर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं और साथ साथ मैंने इनकी मीनिंग भी आपके सामने लिख दी है आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको सॉल्व करने में हेल्प मिल सके, मदद मिल सके. ओके स्टूडेंट्स, वर्ड्स आपके सामने हैं और जो एक्सरसाइज सी है उसके बॉक्स के नीचे 10 सेंटेंसेज हैं और उसके अंदर 10 ही ब्लैंक्स हैं. उसमें जैसे कि आपका पहला सेंटेंस है यू शो डैश बाय थैंकिंग समवन. स्टूडेंट, मसलन हमारे साथ कोई शख्स भलाई करता है, हमारी हेल्प करता है, तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, हम उसका थैंकफुल होते हैं. ओके स्टूडेंट, थैंकफुल मतलब क्या स्टूडेंट, शुक्रगुजार. तो स्टूडेंट, आपने क्या करना है, एक्यूरेट वर्ड उठाना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. आपने सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस को समझना है,
सेंटेंस को समझकर आपने एक एप्रोप्रिएट वर्ड उठाना है और उस ब्लैंक में पुट अप करना है जो उसके अंदर सुटेबल हो। जैसे कि एक आपके लिए मैं सॉल्व कर दूं आपकी हेल्प के लिए, यू शो डैश बाय थैंकिंग समवन, यू शो डैश बाय थैंकिंग समवन। स्टूडेंट हमें शुक्रगुजार, हमें थैंकफुल, हम थैंकफुल कैसे होते हैं, किसी भी इंसान का शुक्रगुजार जाहिर करते हैं। अगर कोई चीज का कोई शख्स हमारे साथ भलाई करता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसका शुक्रगुजार होते हैं। तो शुक्रगुजार की यहाँ पे मेन मीनिंग लिखिए ग्रेटिट्यूड। स्टूडेंट फर्स्ट में आएगा आपका ग्रेटिट्यूड, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, यू शो ग्रेटिट्यूड बाय थैंकिंग समवन। ओके स्टूडेंट, आपको शुक्रगुजारी यानी कि दिखानी चाहिए किसी भी शख्स को उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। ओके स्टूडेंट, बकाया स्टूडेंट 9 सेंटेंसेस है, ये आपकी डायरी है, ये आपने फिलअप करने हैं। ये आपने वो जो आपके रिमेनिंग जो सेंटेंसेस है आप खुद से करेंगे, नंबर 2 से लेकर नंबर 10 तक। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट उसके बाद आपके पेज नंबर 4 पे देखें एक्सरसाइज डी। एक्सरसाइज डी स्टूडेंट आपके पेज नंबर 4 पे मौजूद है। एक्सरसाइज डी आपकी क्या कह रही है, एक्सरसाइज आपकी डी कह रही है, लुक एट द नाउन्स इन बोल्ड प्रिंट इन दिस पैसेज written CC. CC mean concrete and countable. Student, there is the word CC. CC mean concrete and countable. Okay student, write CU. CU means student, CU means concrete and uncountable. Concrete and uncountable. Okay student, and AC. AC means students, AC means abstract and countable. Abstract and countable. And there is other word AU, abstract and uncountable. Students, CC means concrete and countable. Okay students, CC mean concrete and countable. CU concrete and uncountable. AC abstract and countable. AU abstract and countable. स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है नाउन जो है वो दो ही किस्म के हैं, या तो ये वो एब्स्ट्रैक्ट है या कॉन्क्रीट है, फिर उनके अंदर या वो काउंटेबल है या फिर वो अनकाउंटेबल है। आपके पेज नंबर 4 पे एक पैसेज दिया हुआ है स्टूडेंट, और पैसेज के अंदर कुछ लेटर जो है वो बोल्ड में है, कुछ लेटर जो है, कुछ वर्ड जो है, कुछ वर्ड जो है वो बोल्ड में है। आपने उस वर्ड को देखना है कि ये वर्ड जो है ये क्या चीज़ है, कॉन्क्रीट काउंटेबल है, कॉन्क्रीट अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल या एब्स्ट्रैक्ट या अनकाउंटेबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो हर वर्ड के अंदर स्टूडेंट दो खुसूसियात हैं, या तो ये सीसी होगा काउंटेबल एंड कॉन्क्रीट होगा, या फिर वो वर्ड सीयू कॉन्क्रीट एंड अनकाउंटेबल होगा, या फिर वो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट एंड काउंटेबल होगा, या फिर वो वर्ड जो होगा एब्स्ट्रैक्ट एंड अनकाउंटेबल होगा। ओके स्टूडेंट, हर वर्ड के अंदर दो खुसूसियात होंगी। ओके स्टूडेंट, आपने ठीक तरीके से अपने माइंड में सेट करना है, पहले सेट करना है कि ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कॉन्क्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है। पहले आप इसको देखेंगे, उसके बाद स्टूडेंट आप कोई भी डिसीजन लेंगे। ओके स्टूडेंट, आप उसके बाद कोई भी डिसीजन लेंगे, और डिसीजन स्टूडेंट आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की गलती की कोई भी गुंजाइश ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी, ये दोनों आपका होमवर्क है। मैं डायरी आपके यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉल्व एक्सरसाइज सी एंड डी। स्टूडेंट्स, इनका ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूँ, किस तरीके से ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है मैं आपको बता चुका हूँ। स्टूडेंट सॉल्व आपने ये खुद करनी है। ओके स्टूडेंट, आपने एक्सरसाइज डी के अंदर जो बोल्ड लेटर्स हैं उनको देखना है गौर से, और उनको देखकर आपने
खुद से ऑब्जर्व करना है, ये कॉन्क्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट काउंटेबल है, कॉन्क्रीट अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल है. Okay students, this is your diary work. Okay students, so students, it was our today's lecture. I hope you enjoyed a lot of this lecture. Inshallah students, we will meet very soon in our school. Till take care yours and your family. Allah Hafiz.